بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد آپ کو قریش کے اپنے قبیلے کے مخالف لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مکے والوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے تو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ پھر مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے بیچ بدر کی لڑائی میں قریش ہار گئے اور بدر کی لڑائی میں مکہ کے کچھ سردار مارے گئے۔ اس میں جو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے سرداروں نے مشورہ کیا اور مارے گئے لوگوں کے لیے شوق منانا اور جنگ میں پکڑے گئے لوگوں کے معاوضے کے لیے جلد بازی کرنا بالکل منع کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمان ان کی بدترین حالت کو نہ سمجھ سکیں۔ اور ایک لڑائی کی تیاری پھر شروع ہو گئی اور اکریمہ ابن ابی جہل، سفیان ابن امیہ، ابو سفیان ابن حرب اور عبداللہ ابن ربیعہ نے اس کی اگوائی کی۔ ابو سفیان کا کارواں جو بدر سے بچ گیا اور جنگ کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری دولت بیچ دی۔ ان کارواں میں جن لوگوں کا سامان تھا وہ اس کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ مال و دولت 1000 اونٹ اور 50,000 سونے کے سکوں کے برابر تھا۔ جنگ میں حصہ لینے والے الگ الگ علاقوں کے لوگوں کو قریش کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ 1 سال کے بھیتر جنگ کی تیاری پوری کر لی گئی۔ 11 مارچ 625 کو 3000 آدمیوں کی ایک مکہ سینا نے ابو سفیان کی کمان میں مدینے کی اور جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان کی پتنی ہندہ بنت عتبہ اور مکہ سے 15 عورتیں بھی جنگ کے میدان میں پہنچی۔ قریش سرداروں کا ماننا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ہونے سے انہیں اپنے سامان کی حفاظت کے لیے موت تک سے لڑنے کے لیے پروتساہت کیا جائے گا۔ سیدھے مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے شہر کے پاس عقیق گھاٹی کو پار کیا اور احد کے پاس عینین میں تھوڑا داہنی اور ڈیرا ڈالا۔ ہندہ بنت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر کو توڑنے کا ارادہ کیا، لیکن سرداروں نے یہ سوچ کر اس ارادے پر سہمتی نہیں جتائی۔ اس کے نتائج گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ جنگ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس کے بعد مدینہ کے الگ الگ حصوں میں اچانک ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے کئی لوگوں کو تعینات کیا گیا۔ انہوں نے یدھ کے مشوروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سپنے کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایک اچھی چیز دیکھی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی گایوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور میری تلوار کے سرے میں سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے، اور دیکھو میں نے اپنے کوچ اور ہاتھوں کو حفاظت میں رکھتا ہوں۔ حقیقتاً انہوں نے کہا کہ کچھ ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ تلوار کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے پریوار کا کوئی ویکتی شہید ہوگا، اور سنرکشت کوچ کا مطلب مدینہ شہر تھا۔ جنگ کی اگوائی کے دوران مسلمانوں میں متبھید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شہر کے بھیتر سے وروध کر رہے تھے کیونکہ مدینہ میں ایک قلعہ بند شہر تھا۔ دشمن کے پاس ہونے پر آسانی سے حملہ کیا جا سکتا تھا اور مہلائیں چھتوں سے اینٹیں پھینک سکتی تھی۔ دوسری اور حمزہ ابن عبد المطلب سمیت کچھ ساتھی اس بات سے راضی نہیں ہوئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس طرح سے شہر کے اندر سے حفاظت کرنے سے دشمن کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ آگے بڑھیں اور کھلے میں لڑے تو آگے سے وہ لوگوں میں آسانی سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ نتیجتاً مدینہ کے باہر جانے اور دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں کل تعداد 1000 تھی۔ ان میں 100 بختر بند اور 50 گھڑ سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ مہاجر لشکر اور اوس لشکر اور خزرج لشکر۔ ان تینوں لشکر کے کمانڈر مصعب ابن عمیر، اسید ابن اسیر اور حباب ابن منذر تھے۔ لگ بھگ 1000 مسلمانوں کی ایک لشکر نے لڑائی کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ 60 نامک جگہ پر پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن ابی، جنہوں نے پہلے شہر سے باہر نکلنے سے پہلے انکار کر دیا تھا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ نتیجتاً مسلمانوں نے 700 سینکوں کے ساتھ احد
की ओर कूच किया। रास्ते में दुश्मन का सामना करने से बचने के लिए एक अलग रास्ता अपना लिया गया और अबू खैसामा ने बनी हरीसा जनजाति के अनाज के खेतों के बीच से एक अलग रास्ता से उहुद की ओर मुस्लिम लश्कर की अगुवाई की, जिससे उन्होंने दुश्मन को पश्चिम में छोड़ दिया गया। मुसलमानों ने तब घाटी के आखिर में उहुद पहाड़ पर डेरा डाला। इस हालत में मक्का का लश्कर मुसलमानों के सामने था और उहुद पहाड़ उनके पीछे। मक्का का लश्कर मदीना और मुसलमानों के लश्कर के बीच मौजूद था। जंग के मैदान में पहुंचने के बाद सेना का गठन किया गया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इब्न नुमान की अगुवाई में 50 कुशल तीरंदाजों ने एक हिस्से में कनाट घाटी के दक्षिण में मुस्लिम शिविर के 150 मीटर दक्षिण पूर्व में जबल में रूमत नामक एक घाटी सी पहाड़ी में एक जगह जाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने पीछे के दर्रों से होने वाली हमलों से मुसलमान लश्कर की हिफाजत की और उनकी जगह के चुनाव ने बाएं किनारे का जोखिम के काम को भी कम कर दिया। दूसरी ओर दाहिना भाग उहुद पहाड़ की वजह से हिफाजत में था। नतीजतन मुसलमानों को दुश्मन द्वारा कब्जा किए जाने का खतरा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि जब तक वह हुक्म न दे तब तक वह किसी भी हालात में अपनी जगह से ना हिले। उन्होंने एक मशवरे के रूप में कहा था, आप हमारे पिछले हिस्से की हिफाजत करेंगे। अगर आप हमें मरते हुए भी देखें तो भी आप हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, और यदि तुम देखो कि हम लूट इकट्ठा कर रहे हो तो भी तुम हमारे साथ नहीं मिलोगे। बाकी सैनिकों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी लश्कर की कमान मुंजीर इब्न अम्र को दी गई और बाई शाखा की कमान जुबैर इब्न अवाम को दी गई। मिकदाद इब्न असवद को जुबैर के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। बाएं हिस्से को खालिद बिन वलीद के घुड़सवार सेना का विरोध करने का काम सौंपा गया, जो मक्का के लश्कर के दाहिने हिस्से की अगुवाई कर रहा था। ताकतवर जंगजू उसने अपनी फैली सफ में तैनात किया था। मक्का लश्कर के अहम के हिस्से की अगुवाई अबू सुफियान ने किया था। उसने लश्कर के बीच में अपनी जगह बनाई। बाएं और दाएं हिस्सों का अगुवाई इकरीमा इब्ने अबी जहल और खालिद बिन वलीद ने किया। पैदल सेना और तीरंदाजों की अगुवाई सफवान इब्न उमैया और अब्दुल्लाह इब्न रबियाह ने किया। हदीसों के मुताबिक बनु अद्दार के कबीले के एक गिरोह ने मेकान सेना के परचम को आगे बढ़ाया। जंग शुरू होने से पहले अबू सुफियान ने अंसार को पैगाम भेजा कि अगर उन्होंने मुहाजिर मुसलमानों को छोड़ दिया तो उन्हें नुकसान नहीं किया जाएगा और शहर पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अंसार ने इस पैगाम को ठुकरा दिया। मदीने के भगोड़े अबू अम्र ने मक्का की ओर से पहला हमला किया। अबू अम्र और उसके लोग मुसलमानों के तीरों की बौछार में मक्का लाइन के पीछे पीछे हट गए। अब तलहा इब्न अबी तलहा अल अब्दारी मक्का के कमांडर आगे बढ़े और एक बड़ी जंग के लिए बुलाया गया। जुबैन इब्न अल अमाम ने कौल पर ध्यान दिया और आगे बढ़कर तलहा को मार डाला। तलहा के भाई उतमन इब्न अबी तलहा ने आगे बढ़कर हुए झंडे को उठाया। हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब लोगों के बीच से आगे आए और उन्हें मार डाला। मक्का का झंडा ले जाने की जिम्मेदारी उनके परिवारों को सौंपी गई। तलहा के भाई और बेटे सहित 6 आदमियों के बाद एक आगे आए और सभी मारे गए। जंग के मैदान में दोनों लश्करों के बीच बड़ी अहम लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में आई कुरैशी औरतें डफ बजाकर लश्करों का हौसला बढ़ा रही थी। मक्का के लश्कर के लोगों का हौसला पस्त हो गया क्योंकि मुसलमान मक्का लश्कर के सफों को तोड़ने में सफल हो गए थे। खालिद बिन वलीद की अगुवाई में मेकान घुड़सवार सेना ने 3 बार मुसलमान सेना के बाएं हिस्से पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जबल रुमत में तैनात तीरंदाजों ने हमले के कारण आगे बढ़ने में असफल रहे। नतीजतन मुसलमानों ने मैदान के जंग में एक बेहतरीन हालात पैदा कर लिए थे और जीत के करीब आ गए थे, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को उन पैदल सैनिकों के कमांडर के रूप में ओहदा दिया था जो ओहद के दिन 50 साल के हो गए थे। उनको हुक्म दिया गया था कि अपने इस जगह पर डटे रहें और जब तक मैं तुम्हें बुलावा न दूं तब तक तुम हमें अगर चिड़ियों को पकड़ते हुए देखो तब भी उसे मत छोड़ना, और यदि तुम देख लो कि हमने काफिरों को पराजित करके उन्हें भगा दिया है तब भी तुम ऐसा न करना जब तक कि मैं तुम्हें बुलावा न दूं, और तब तक तुम अपना जगह मत छोड़ देना। तब काफिरों की हार हुई और अल्लाह की कसम मैंने देखा कि औरतें अपने कपड़े उठाकर भाग रही थी और अपनी टांगों की चूड़ियां और अपने
टांगे खोल रही थी तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथियों ने कहा, लूट लो, हे लोगों लूट लो, आपके सामने कामयाब, हम सब कामयाब हो गए हैं, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह जाने और वो जाने। इसी बीच बड़ी संख्या में मुसलमान तीरंदाजों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की तामीरदारी ना की और पहाड़ी से नीचे उतरकर मुख्य सेना में दाखिल हो गए। नतीजतन बाईं ओर से सुरक्षा कमजोर हो गई। इस हालत में खालिद की अगुवाई में मेकान घुड़सवार सेना ने बेहतरीन मौका जानकर उन्होंने शेष बचे तीरंदाजों पर हमला किया और जिन्होंने हुक्म की तामील के अनुसार अपना मुकाम नहीं छोड़ा था, लेकिन तादाद की कमी के कारण खालिद की घुड़सवार सेना का मुकाबला न कर सके। नतीजतन मेकान लश्कर मुसलमानों के लश्कर के किनारों और पीछे के हिस्सों पर हमला करने में कामयाब रही। इस भगदड़ में कई मुसलमान मारे गए और एक छोटा हिस्सा लश्कर से अलग हो गया, मुसलमानों की ओर बढ़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गए और मेकान लश्कर के हमले में एक दांत आपका शहीद हो गया, लेकिन अफवाह फैल गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। एक बड़ी जंग के बाद ज्यादातर मुसलमान ओहद पहाड़ की ढलान पर जमा हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर चोटी शरण ली। मेकान सेना पहाड़ की ओर बढ़ी, लेकिन उमर इब्न अल-खत्ताब और मुसलमानों के एक गिरोह ने बदला लेने के कारण आगे बढ़ने में वो लोग कामयाब न रहे। नतीजतन लड़ाई बंद हो गई। हिंद और उसके साथियों ने तब मुसलमानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाशों के कान और नाक काट दिए और उन्हें गहनों की तरह पहना। लड़ाई के दौरान हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इथियोपिया के गुलाम वैसी इब्न हरब के भाले से मार दिया गया था। वैसी ने हमजा को मार डाला क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि अगर उसने हमजा को मार दिया तो उसे गुलामी से आज़ादी मिलेगी। हिंद ने शहीद हमजा का कलेजा चबा लिया। मुसलमानों के पहाड़ों में चले जाने के बाद उमर ने अबू सुफियान के साथ कुछ बहस की। बहस के दौरान अबू सुफियान ने इस दिन को बद्र का बदला बताया। जवाब में उसने कहा, मुसलमानों के मरे हुए जन्नत में हैं और काफिरों के मरे हुए जहन्नम में हैं। और फिर मक्का के लश्कर के लोगों ने मक्का की ओर कूच किया। मुसलमानों ने शहीद लोगों को जंग के मैदान में ही दफना दिया और शुरुआत में मुसलमान इस जंग में फतह के नजदीक करीब पहुंच गए थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जंग का रुख ही बदल गया और बहुत से सहाबा कराम शहीद हो गए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को भी इन सहाबाओं के साथ शहीद हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह मालूमात पसंद आई होगी। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।